Do you know why the most of the people cannot speak English very well? The reason is they just all say that the words come to my mind, but I just got blank while speaking English. So do you think why this happened? What's the solution? So in this video we're gonna talk about the solutions of this problem, and I'm gonna discuss a top-down approach for this problem, and by using this technique you can also speak English very fluently. So let's just start our video with a happy smile on your face and be confident, and just listen carefully at these 5 to 6 minutes video. It's just gonna be 5 to 6 minutes video. So just listen this carefully before you start speaking English. So the reason that why the most of the people cannot speak English, because they follow the down to top approach. What is that approach? I have learned this also from the Alina Reyes life. She is my ideal person and I have learned a lot, and I improved a lot of my English from just her communication skill, the way that she speaks in a very fluent and a very simple way. She conveys her message in a very simple way. And in this video she just discussed the top down approach. So what is that approach? She says that you start speak English. Just start with a little bit of English that you know. Whatever you know, just start it. And the down to top approach means that you are looking for the stuff. You are looking just to make your tenses perfect. You are looking to make your vocabulary advanced, and some other tenses and prepositions and etc. many other stuff. You are afraid to speak. इसका मतलब है कि आप डाउन टू टॉप अप्रोच तब फॉलो करते हो जब आपको लगता है कि हम ये वाला स्टफ भी लर्न कर लें, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें. और ऐसे करके जो आप बहाने बनाते हो अपनी इंग्लिश बोलने की जो प्रैक्टिस है उससे बचने के लिए, ये बस सिर्फ बहाने हैं, इनसे नहीं चलने वाला. सो वो मैडम कहती हैं कि आप टॉप टू डाउन अप्रोच अपनाओ, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी यही कहते हैं. बोलना तो स्टार्ट करो, जितना आता है वैसे बोलो. जो बोलोगे खुद ब खुद आप चलोगे. जब कोई भी बंदा ड्राइविंग सीखता है, ऐसे तो नहीं है ना कि उसको बैठे बैठे हमें पता होता है कि हाँ ये इसका एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये इतना गियर है, ऐसे हमें रिवर्स करना है गाड़ी को. देखने से हमें पता चल जाता है कि हमें आती है, बट कार ड्राइविंग करनी हमें कब आएगी? जब हम खुद रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे. यही है कि अगर हमें पता है सब कुछ कैसे फंक्शन करते हैं, हमें सारे फंक्शंस पता है, बट हमें प्रैक्टिकल वे में उसको करना ही नहीं आता. ट्रैफिक पे जाके क्या फ़ायदा उन सारे फंक्शंस का पता हुए जब हमें कार ड्राइव ही नहीं करनी आती, जब हमें ट्रैफिक में जो अपनी कार है वो हैंडल ही नहीं करनी आती. तो यही हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ होता है. हमें सब कुछ पता होता है, हम सारे फंक्शंस लर्न कर लेते हैं, हम अकेले में भी बात कर लेते हैं, बट जब लोगों के बीच में जाकर बोलने की बात आती है तब हमें नहीं आता, बिकॉज हमने वो प्रैक्टिस ही नहीं की. हमने सिर्फ जो फंक्शंस है वो सीखे, जो प्रैक्टिकल वे था, जो अप्लाई, तो हमने उनको किया ही नहीं. सो प्लीज़ जस्ट अप्लाई, जस्ट फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच इन योर लाइफ इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. प्लीज़ जस्ट ट्राई दिस only once. And the second step which I just want to say is be comfortable in your way. Such as I'm just sitting here and I'm just speaking to you only. There's no script or not anything else. I'm just speaking tutti frutti English. I know my vocabulary is not so perfect, but yeah, I'm just trying. So I'm just applying. I'm just doing top down approach to improve my English better, and also I'm conveying a message to you just to follow this. Since I have followed this from 5 to 6 months. And yeah, I have seen a lot of improvements in my English speaking skills. So if you also want, then you can also do. आपने कभी देखा है जब कोई साइकिल चलाता है, तो वो जब हम साइकिल चलाते हैं तब हम उसके एक्सपर्ट होते हैं. एक तो होता है नॉर्मल, हमने साइकिल चला ली, और एक होते हैं जो साइकिल रेसर होते हैं, जो पहाड़ों पे जाके रेसिंग करते हैं. डिफरेंस उनमें बहुत होता है. बात यही है कि साइकिल चलाना है, उसने भी साइकिल चलानी है, बट एक्सपीरियंस प्रैक्टिस हम बस नॉर्मल रोड्स पे अपने साइकिल चलाते हैं, बट वो पहाड़ों पे जाके हायर द रिस्क द हायर द गेन यू रिसीव.
जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा, अगर वो डर जाएंगे कि पहाड़ों से हम गिर जाएंगे, हम भी नॉर्मल साइकिल चला लेते हैं, हमने क्या करना साइकिल रेस करके, तो वो भी ऐसे पीछे हट जाएंगे। जस्ट डोंट गो बैकवर्ड, जस्ट गो फॉरवर्ड, जस्ट पुश योरसेल्फ फॉरवर्ड if you really want to do something. It's not only for English speaking skills, it's also for your career. If you also want to pursue your career, then just go. Do not think about the people. No. आप जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, जब वो कभी कभी स्टेज पे आके जब हिचकिचाने लग जाते हैं, वैसे वो हिचकिचाते नहीं, बट स्टार्टिंग में जो होता है हम ऑडियंस भी डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, इनको क्या हो गया, हम डर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो चाहते होते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करो, आप वेल परफॉर्म करो, तो वो आपको कभी नहीं चाहिए कि आप ऐसे ऐसे करके डरो स्टेज पे जाके। नो, लोग बातें करने लग जाते हैं, क्या हुआ यार, ये तो इतना अच्छा था, ये क्या हो गया, इनको ऐसे कैसे, ये नर्वस हो गए। सो प्लीज़ लोगों को मौका मत दो। अगर आप एक स्टेप आगे चलोगे तो लोग आपके साथ चलेंगे, वो भी आपको उतने ही सपोर्ट करेंगे। वो हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम कैसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, वो अलग बात है। सो बीइंग अ गुड कंपनी, इंग्लिश लर्निंग पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं है, खुद से बातें कर लो। ऐसे करके आप जो अपनी इंग्लिश है, टॉप टू डाउन अप्रोच है, वो फॉलो करना। टॉप टू डाउन अप्रोच जब आप ये फॉलो करोगे तब आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं फेस होगी कि द वर्ड्स कम टू माई माइंड बट I got blank while speaking English, I cannot speak English, or if you learn something new. And yeah, just don't and just remember one thing, English is just a language, it's not a rocket science. So just don't overvalue it and just don't undervalue it. Just treat it as a global language, it's just a medium, so just treat it as a only language, it is your second language. So just treat it as a language only, not overvalue it or not undervalue it. So thank you. I hope मेरी वीडियो ये अच्छी लगी। टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो कर लो तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।